ہم اتنا طویل راستہ طے کر کے جائیں گے، جبکہ میں جانتا ہوں جانا بیکار ہے۔ اگلے چند روز میں تو یہ روٹی بھی کھانے کو میسر نہیں آئے گی۔ راستے کے خطرات کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ خونخوار وحشی درندوں اور رازانوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگ سب 11 بھائی ہیں، سب کے سب نڈر اور بہادر، پھر ڈر اور خوف کیسا؟ میں آپ کے لیے سامان سفر اور کچھ ذاتی راہ کا انتظام کرتی ہوں۔ اگر تم لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی نہ چاہتا۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا، اب گھر کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں بابا، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے؟ نہیں بیٹا، ہم بھائیوں نے طے کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ نہیں لے کے جائے گا، اور ویسے بھی ابھی تم لوگ کم عمر اور نا تجربے کار ہو اور سفر کے خطرات سے ناشنا۔ طویل سفر کے لیے تجربے کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں نے سنا ہے کہ راہزن گھات لگائے بیٹھتے ہیں اور کارواں والوں پر حملہ کرتے ہیں۔ 11 برومند بھائیوں پر حملہ کرنے کی کس میں جرت ہوگی؟ اور پھر کنان کے دیگر افراد بھی اس سفر میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ احد، جرشو، قہر، دیکھو گھر اور جانوروں کی طرف سے میں بے فکر ہو جاؤں نا، میں تم لوگوں کے بھروسے پر اس سفر پر جا رہا ہوں۔ میں آپ کا سامان سفر آمادہ کر دیتی ہوں۔ سپاس گزار ہوں۔ یہ چند روٹیاں ہیں راستے کے لیے، اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہی کافی ہے۔ وہ سکے سنبھال کے رکھ لیے ہیں نا آپ نے؟ پریشان مت ہو، وہ بالکل محفوظ ہے، حالانکہ میں اس سفر سے زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ روبین، یہ جانور ہمارے سفر کے لیے کافی ہوں گے نا؟ ہاں کافی تو ہونے چاہیے۔ جاتے وقت ان پر سوار ہو جائیں گے اور واپسی پر گندم لاد دیں گے۔ گندم میسر آ جائے تب لا دیں گے نا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سفر پر جانے کے لیے کافی افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم تعداد میں جتنے زیادہ ہوں گے خطرے کا امکان کم ہوگا۔ اس سفر کے تمام خطروں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ توکل بر خدا۔ بہرحال ہمیں تو اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائیو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور بہن، تم بھی ہمارے بیوی بچوں کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ آپ بھائیوں کے ہمراہ نہیں جائیں گے؟ جانا تو چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ بابا اجازت نہیں دیں گے۔ آپ بات تو کریں، شاید اجازت دے دیں۔ دیکھتا ہوں۔ سلام بابا۔ سلام بیٹا۔ بابا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ بابا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ہمراہ چلا جاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ تم یہیں میرے پاس رہو اور اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں تمام خاندان والوں کو سنبھالو۔ جیسا نبی خدا مناسب سمجھیں۔ آیا نبی خدا سفر کے لیے ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائیں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس قحط کے نتائج سے کافی پر امید ہوں، لہذا نصیحت کرتا ہوں کہ اس سفر میں پیش آنے والے واقعات کو خیر الصلاح سمجھنا، نہ کہ مشکلات اور رکاوٹیں۔ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا بابا۔ خدا نگہدار ہوں۔ ہمارے لیے دعا خدا کیجیے گا نگہدار بابا۔ بنیامین، پھر خدا ملیں گے بابا۔ نگہدار۔
इत्मीनान रखिए, हम खालियात नहीं लौटेंगे। खुदा निगरान। खुदा निगरान। सब हरकत करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदावंदा इन्हें कामयाब और सही और सलामत लौटाना। आमीन। बानो जुलेखा कहाँ? अब कहाँ जा रही हैं? सुना है कि युजारसीफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है। जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान युजारसीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। युजारसीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। युजारसीफ तो हर रोज किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? ये आपका युजारसीफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना? मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कहीं है। मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला युजारसीफ यहाँ कहाँ से आए?
माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत न सुननी पड़ती। लेकिन वो आएगा, बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये जमीन फिलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत खत्म हो जाएगा। ये जमीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफी होगी। अब ये तमाम एराजी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी जमीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम गुलाम साहिब जमीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी। वो कहत में क्या कर रहे होंगे। काश मेरे बाबा और भाई यहाँ होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। दुरूद बर सालारे कारवान बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिफात गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी।
रही हैं। हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास ही किया जा सकता है। अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ? क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ के दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही आप मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूं। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाएं। आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीख। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया है कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की, लेकिन हो न सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। बचपन से आंख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है। आप ही के कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूं तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों क्या थी, वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें। वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं, उतनी ही दिल नशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी।
نام اور پتہ وغیرہ لکھ کر دے دو. ہم 10 بھائی ہیں. میں لاوی ہوں، یہ شمون، یہودا، جاد، دان، زبولو، یساکر، اشیر، نفتالی، روبین. ہم سب فرزندان یعقوب اور کنان کے رہنے والے ہیں. تم 10 افراد بھائی ہو، تبس کس لیے آئے ہو؟ دوسرے لوگ کس لیے آئے ہیں؟ ہم بھی دوسروں کی طرح. تمہیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. میرے سوال کا جواب دو. تم لوگوں کی مصر آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم گندم خریدنے کے لیے مصر آئے ہیں. ہماری سرزمین کنان بھی قحط کی زد میں ہے. ہمیں بتائیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں مامور کیا گیا ہے کہ اجنبی لوگوں کی مکمل معلومات حاصل کریں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگوں نے اس سے قبل یہاں سے گندم حاصل کیے یا نہیں. آیا گندم کے تاجر ہو یا قحط زدہ؟ اپنے نام، پتے اور کل تعداد لکھو. یہ اتنے سارے بہانے کس لیے؟ اگر گندم نہیں بیچنا ہے تو اتنا تنگ کیوں کر رہے ہو؟ یہ یہاں کے قوانین ہیں. اگر قبول نہیں ہے تو جا سکتے ہو. جہاں کوئی گندم نہیں ہے یہاں. بس کرو شمون. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جناب. اگر یہ قوانین سب کے لیے ہیں تو ہم بھی ان کا احترام کریں گے. آپ بتائیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے تمام قواعد اس کاغذ پر درج کریں. وہ ہم جناب یوزارسیف کی خدمت میں پیش کریں گے. دیکھیں وہ کیا حکم دیتے ہیں. تم اور تمہارے دیگر بھائی میرے حکم لانے تک یہی دروازے کے باہر انتظار کریں. بہت بہتر جناب. اس میں لڑنے جھگڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں. ہم یہاں گندم لینے آئے ہیں یا لڑنے جھگڑنے؟ تم لوگوں کی تو عادت ہو گئی فتنہ فساد کی. یا نبی خدا، دروازہ سوریہ کا نگہبان گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے. کیا اجازت ہے؟ ہاں، بلا لیجئے اسے. درود براری جناب یوزار سے. درود خداوند ہو تم پر بھی. ہاں کہو، کیا بات ہے؟ گزشتہ ہفتے دروازہ سوریہ سے شہر طبس میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کی کل تعداد 390 تھی. سب نے ایک ایک بوری گندم خریدی اور اسی دروازے سے واپس چلے گئے. ان سب کا تعلق ہمارے قرب و جوار کے ہمسائے ممالک شامات وغیرہ سے تھا. بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے. البتہ آج 10 بھائی جو اپنے تعلق کنان سے بتاتے ہیں وارد شہر ہونا چاہتے ہیں. کنان سے 10 بھائی؟ نام نہیں پوچھے ان کے؟ کیوں نہیں عالی جناب، ان کے نام اس میں درج کر دی گئے ہیں. وہی ہے، بنی اسرائیل. کیا ہوا نبی خدا؟ کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے؟ اس میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا؟ کچھ نہیں بانو، صرف ان 10 بھائیوں کے نام درج تھے. مالک، انہیں احترام کے ساتھ قصر اخناتون لے جائیے. آپ کو خدا کا واسطہ کچھ تو بتائیں. آخر آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بالآخر تقدیر میرے بھائیوں کو مصر لے آئی ہے تاکہ وعدہ خداوندی کی تکمیلیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں. اتنے طویل عرصے بعد؟ ارادہ خداوندی یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے عرصے دور رہیں. بس میرا آپ سے یہ تقاضا ہے کہ یہاں میرے بھائیوں کی موجودگی کا کسی کو علم نہ ہونے پائے. خدایا سپاس گزار ہوں، سپاس گزار ہوں. کہاں ہے؟ یہ ہیں. کیا آپ لوگ کنانی ہیں؟ جی ہاں، ہم سب کنان سے آئے ہیں. آپ لوگ تو 10 افراد سے زیادہ ہیں. مجھے تو بتایا گیا تھا کہ 10 کنانی بھائی ہیں. بس ہم 10 بھائی ہیں، باقی سب قافلے والے ہیں.
मैं अजीज मिस्र की जानिब से आया हूँ। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो या इंतजार की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माजरत चाहते हैं। आप 10 भाई तिब्स में दाखिल हो सकते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजीज मिस्र के कस्र ले जाऊं। और बाकी कुनानियों का क्या होगा? बाकी सब लोग गंदुम की वसूली के लिए जा सकते हैं। आप सब भाई मेरे साथ तशरीफ लाइए। आखिर हम 10 भाई ही क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये आप खुद अजीज मिस्र से पूछ लीजिएगा। तशरीफ लाइए। घबराइए मत, आप अपनी गंदुम हासिल करने जाइए। वापसी में आकर इसी दरवाजे पर एक दूसरे से मिल लीजिएगा। इनके जानवरों को उनकी वापसी तक अस्तबल ले जाइए और उनकी देखभाल करें। आइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ इतनी सख्ती बरती गई और कहाँ अब इतनी नरमी से पेश आया जा रहा है। आखिर हमें अजीज मिस्र के कस्र क्यों ले जाया जा रहा है? वो सख्ती अदम आगाही के बाइस थी जो मामून ने की थी, और ये नरमी उस मेहरबानी और मेहमान नवाजी की बदौलत है जिसका अजीज मिस्र ने हुक्म दिया है। क्या वो सब पर इतने ही मेहरबान हैं? अहले मिस्र यूजार सीफ की परस्तिश करते हैं। वो सबके साथ ही निहायत मेहरबान हैं। अलबत्ता सबको कस्र में मदू नहीं किया करता, और इसकी वजह बेहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं नहीं जानता। देख रही हैं आसनाद, ये 10 मेरे भाई हैं, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। ये फरमा रवाए मिस्र जनाब आखनातून का कस्र है। आप पहले कबीले वाले हैं जिनको यहाँ आने की सादत मिली है। लेकिन वो जो सबसे आगे आगे मालिक के साथ चल रहे हैं वो लावी हैं। उनका चेहरा खूब अच्छी तरह याद है। मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। या खुदा, इनके बाल कितने सफेद हो गए हैं। देखा जमाने के सर्द और गर्म ने उनकी क्या हालत कर दी है। और वो जो सबसे आखिर में खड़े हैं वो यहूदा हैं। हर तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं। वो हमेशा ही मशकूक रहते हैं। वो अभी तक अपनी उसी फितरत पर कायम है। ओह मेरे खुदा, ये सब लोग कितने बदल गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बिन्यामीन भी उनके साथ ही में हो। उनमें से अक्सर के सर और दाढ़ी के बाल कितने सफेद हो गए हैं। आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परेशान मत होइए, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लिहाजा सबसे ज्यादा तब्दीली आप ही में आई होगी, खासकर इस लिबास में। उम्मीद है ऐसा ही हो। चलें।
खुदा बंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मारे माऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इसे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रुद्दीन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई वर्षों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबों से कहिए कि उनके कयाम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूं। नीमी साबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताजा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और जबूलू कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म और सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ न करती।
उनके आराम और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तात आली जनाब। ये कसर आखनतून खुदा और खुदा के बेटे की रिहाइशगाह मानी जाती है। न जाने किस तरह के लोग यहाँ आने लगे हैं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन मेहमानों को जनाब यूजारसीफ ने बुलवाया है। कितनी रग़बत से खा रहे हैं। यकीनन कहत ने किनान में एक हशर बर्पा किया होगा जो ये लोग इतना तवील सफर तय करके यहाँ आए हैं। जब इन लोगों का भूख से ये हाल है तो इनकी बीवी बच्चों की क्या हालत होगी। कितनी धूल मट्टी में तुम मटे हुए हो। यहाँ तो मकड़ियों के जाले तने हुए, बिल्कुल मेरे अंदर की तरह एक वीरान तारीख खंडर। तुम सबके नाम मुझे याद है। अलबत्ता कौन सा नाम किस मुजस्मे का है ये भूल चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि याद कर सकूं कि किसका क्या नाम था। बोरिस, तुम्हारा याद नहीं है। तिया, शगाल, अनुबिस, मफ्तू, मुफ्तीस, गेट। हाँ, यही नाम थे ना तुम्हारे। मैं यहाँ आया करती थी और एक एक के सामने इबादत किया करती थी। आमोर, अरे हाँ, ये अमान कहाँ है? आखिर ये आमून कहाँ है? आमोर, तुमने देखा मैंने तुम्हें किस कदर तलाश किया, तब जाकर तुम्हें पाया। पहले जानती थी कि तुम्हारा मुजस्मा कहाँ हुआ करता था,
मैं यहाँ आया करती थी और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमूर में किस तरह सनीको किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आज ही दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? खुदा यूसुफ, तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सरनीगू कर दिया। यूसुफ कहता था तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती। परवरदिगारा, तूने मेरे भाइयों को मुझसे मिलाया, मैं इस बात पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे मेरे बाबा और बिन्यामीन की बहुत याद आ रही है। अब उन्हें भी मुझसे मिला दे। इलाही, हिज्र के ये दिन बहुत तवील हो गए हैं। तू फिसल की घड़ियों को नजदीक कर दे। किससे बातें किया करता था, लेकिन क्या बातें करता था ये मैं अब भी नहीं जानती। वैसे तू कौन है जो यूसुफ यूं दीवाना वार तेरी परस्तिश करता है? क्या तू आमोन जैसा खुदा है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो कभी आमोन के लिए गिरिया नहीं किया, किसी भी खुदा के लिए नहीं, लेकिन मैंने बारहा यूसुफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा।
میں نے یوسف کے لیے بہت گریہ کیا، لیکن تیرے لیے کبھی نہیں کیا۔ یوزاسیف، یوزاسیف، یوسف، یوسف۔ مصر کی بڑی تعداد یوسف کی ایک خدا کی طرح پرستش کرتی ہے۔ آخر تو کون ہے جو مصریوں کا محبوب یوسف اپنا سر تیرے آستانے پر جھکاتا ہے؟ زلیخا کی طرح بہتوں نے یوسف کے فراق میں گریہ کیا، لیکن وہ تیرے فراق میں گریہ کنا رہتا ہے۔ تو یقیناً بہت اچھا معبود ہوگا، مگر نہ یوسف جیسا تیری ستائش نہ کرتا اور نہ ہی گریہ کنا رہتا۔ خوشا نصیب یوسف کے جو تجھ جیسا خدا رکھتا ہے، خوشا نصیب تیرے کہ تو یوسف جیسا بندہ رکھتا ہے۔ مصر کی ایک اشراف زادی نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے، بس اتنا سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے۔ یقین مت کیجیے گا بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت نہیں کرتا۔ دل کا معاملہ ہے اور دل کسی منطق کو نہیں مانتا۔ عاشق کسی آلودگی کو اپنے پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ہوس کو عشق کا نام دینا مناسب نہیں۔ کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی ہاں۔ کون ہے وہ؟ تو یقیناً بہت حسین و جمیل ہوگا، تبھی تو تیرے ہوتے ہوئے یوسف نے تمام خوبرو حسیناؤں سے بے اعتنائی برتی۔ پتہ نہیں جس طرح تو یوسف کو اپنی بندگی اور راز و نیاز کی اجازت دیتا ہے، کیا دوسروں کو بھی دیتا ہے؟ اب ہر کوئی تو یوسف کی طرح پاک سرشت نہیں ہوا کرتا نا۔ کیا گناہگاروں کو بھی اپنے دربار میں قبول کرتا ہے؟ کیا ان کا درد دل بھی سنتا ہے؟ یوسف تو سب پر مہربان ہے، کیا تو بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں معلوم تو کون ہے اور کیا ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں یوسف کا معبود یقیناً یکتا و بے مثل ہوگا۔ تو یقیناً بہترین اور زیبا ترین ہوگا، وگرنہ یوسف اس کی پرستش نہ کرتا۔ میں نے بھی گریہ کیا، یوسف کے خدا کے لیے میں نے بھی تیرے لیے گریہ کیا۔